we were doing the chapter democratic rights, and in the democratic rights I had told you what are democratic rights. यानी कि किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में when we are living we need some what we call as benefit, privilege या फिर कोई right जिससे कि we are not tortured by anyone else, और उन चीजों को हम बोलते हैं राइट्स. हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैड अ वेरी अगली पास्ट, दैट इज ब्रिटिश हैड रूल्ड ओवर अस फॉर मेनी इयर्स, तो द पीपल वर हरास्ड. उनको जो है आवाज उठाने की कोई राइट्स नहीं थे. Then when we look into the monarchy, when we look into the other forms of non-democratic governments, वहां पर भी we can see that the common people do not have rights. So while we frame the constitution, हम लोग जो है we try to accommodate the people. तो हमारे यहाँ जब constitution बना तो some fundamental rights were inserted. Now what is the meaning of fundamental? मतलब basic rights जो कि सबको मिलता है as you are born as a citizen of India. And in our last class we had already done 3 of them. The very first we had done right to equality. Second, we had done right to freedom. And the third one we had done was right against exploitation. So today we are going to start with freedom, right to freedom of religion. Now, आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली इस वाले में से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब हो जाता है व्हेन वी आर गिवन द राइट, हम लोगों को जो है इस बात का पूरा राइट है कि हम जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं हम उसे करें. In some of the countries we have the forceful conversion. मतलब आप किसी रिलीजन के हो तो आपको जबरदस्ती उनके रिलीजन को कन्वर्ट, आपको उस रिलीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप अपने घर में कर सकते हो, बट यू विल नॉट बी हैविंग द राइट टू फॉलो इट इन पब्लिक. यानी कि आप, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, यू आर नॉट अलाउड. लाइक इफ यू, वैसे तो all the democratic governments are very tolerable towards religion, मतलब religion को सब लोग मान्यता देते हैं, but in श्रीलंका यू, मतलब कि जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वहां का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो है बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं दे गेट द बेनिफिट्स, बट जो लोग और दूसरे किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, दे आर नॉट गिवन सर्टेन बेनिफिट्स. देन इफ यू गो टू कंट्रीज लाइक यूएस, अगर आप यूएस जैसे कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर क्या है, इफ यू आर लिविंग इन यूएस यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, आप कर सकते हो, लेकिन देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. आप उसे कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो. तो हमारे यहाँ पर इन अवर कंट्री इंडिया फॉलोज अ सेक्युलर स्टेट. बेटा ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है. इट मे नॉट कम डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जगह आ सकता है that how can we say India is a secular state. तो secular का मतलब होता है which is tolerable to all the religion. हमारे यहाँ पर there is no official religion
Like in Pakistan, Islam is the main religion. In many of the Gulf countries, they have Islam as a main religion. In China, Buddhism. In Nepal, Hinduism. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. We don't have any official religion. Everyone who belongs to Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everyone is free to follow their religion, practice करें, propagate करें. इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, it does not differentiate between religions. आप इस religion को belong करते हो, तो इसीलिए you are, ऐसा नहीं है कि you have to, आपको जो job नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं. तो इस, that is why we say we are secular. Every person has a right to profess, practice, and propagate the religion he or she believes in. Every religious group or sect is free to manage its religious affairs. A right to propagate one's religion does not mean he has a right to compel another person to convert his religion by force, fraud, or inducement or allurement. पहले तो हमारे यहाँ पर एक मतलब ये भी होता था कि मतलब कि if a girl gets married तो she has to follow the religion of her husband, but अब वो भी नहीं है. Of course, a person is free to change religion on his or her own will. There are people who have converted themselves. I had one student called I don't remember the exact Abhishek and Ashutosh. So these two people, और उनका नाम था अभिषेक शर्मा एंड आशुतोष शर्मा था. तो one day हमारे स्कूल के अंदर क्या है कि we used to have this हनुमान चालीसा. तो Tuesday and Saturday we have to practice हनुमान चालीसा. तो हम हनुमान चालीसा करवाते थे. तो he said कि मैम I'll not do it. तो हमारे यहाँ ये भी है कि यू आर नॉट सपोज टू फोर्स एनी चाइल्ड. बट मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसे बोला कि अभिषेक तुम तो हिंदू हो. तो ही सेड नो मैम आई एम अ क्रिश्चियन. आई वाज बिट मतलब मेरे को लगा है शर्मा एंड क्रिश्चियन. तो ही सेड यस मैम, हमारे मम्मी ने जो है कन्वर्जन कर लिया. फिर उसके बाद दैट ही वाज इन 11th स्टैंडर्ड. फिर उसकी मम्मी जब पीटीएम में आई तो मैंने उनसे पूछा, तो दे सेड यस, थ्री मतलब उस वक्त में 2-4 साल पहले उन लोगों ने जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था. दैट इज द, तो यू आर हैविंग द फ्रीडम. Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इंसानों को, दिन जानवरों को जो है सैक्रिफाइस किया जाता. दैट इज रॉन्ग. कहते हैं कि मतलब कि इसको, उसका नाम क्या, इसको सैक्रिफाइस करने से बारिश होगी. तो दीज आर रॉन्ग. Religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed. जैसे in the back areas time पहले, इवन अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, बट अब लॉफुली वो गलत है. इफ अ वुमेन बिकम्स विडो, तो पहले होता था कि उसे सफेद कपड़े ही पहनने पड़ते थे. इन some of the communities उसको बिल्कुल उसके बाल गंजे कर दिए जाते थे. एक बहुत फेमस मूवी है राज कपूर जी की, प्रेम रोग, ऋषि कपूर एंड पद्मिनी कोल्हापुरी, बहुत बहुत अच्छी मूवी है. उसके अंदर दीज थिंग्स आर शोन. पहले ऐसा ही होता था. शी वॉज नॉट सपोज टू सिट विद द कॉमन पीपल. then she should sit alone in her own room. उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए. अगर वो आ जाएगी तो that would be considered inauspicious. But now at least हमारा law जो है इन चीजों को नहीं मान. A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular land. मतलब अब कंट्री के अंदर अलग अलग रिलीजन रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक रिलीजन को आप जो हो फेवर कर रहे हो. उनको जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए उन्हें बेनिफिट मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता. Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. Thus,
The government cannot compel any person to pay any taxes for promotion or maintenance of any particular religion or religious institutions. अगर आप लोगों ने आई थिंक कौन सी मूवी थी, जोधा अकबर थी शायद, जोधा अकबर, इफ यू हैव वॉच दैट मूवी, उसमें भी आप देखोगे कि पहले क्या होता था, हिंदूज को अपने टेम्पल्स के अंदर जाने के लिए दे हैड टू पे द टैक्सेस, but it was I think Akbar who had removed these taxes, क्योंकि everyone अपने अपने मतलब कि मंदिर के अंदर जाने के लिए you don't need to pay any taxes. In fact गवर्नमेंट कहीं पर भी जो है जो मतलब it doesn't ask anyone to practice any language but sorry religion, but at the same time कभी कभी गवर्नमेंट कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे मतलब कि वो एस्टैब्लिश करता है, so that the children who belong to that community are also getting those benefits. Like हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन minority schools हैं आपके, then you have the Muslim minority schools, then you have the Sikh minority schools, आपका गुरु हरे कृष्ण पब्लिक स्कूल, तो ये then दशमेश पब्लिक स्कूल, तो ये जो है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है दे आर इन लेस एज कंपेयर टू हिंदू, तो इनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं. माइनर मतलब उनका जो पॉपुलेशन है वो कम है, हम अगर 100 है तो वो सिर्फ 2 या 3 है, बट द गवर्नमेंट हैज गिवन देम द परमिशन कि वो लोग अपनी, तो अगर आप मतलब कि इफ योर फ्रेंड और समवन इज इन गुरु हरकृष्ण, आप देखो उनके यहाँ पर पंजाबी पढ़ना पड़ता है. In Dashmesh also it is compulsory, but that is only to promote their own culture and religion. So this is freedom to religion. Next is cultural and educational rights. Now what is the meaning of culture? अभी आपको मैं बता रही थी कि हमारे अपने फंक्शंस होते हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी में, सी विद इन तमिल हम लोग तमिलियंस है, बट विद इन तमिलियंस वी हैव डिफरेंट फंक्शंस. इनफैक्ट हमारे घर में तो कई बार मेरी डॉटर्स मेरे को बोलेंगी, मम्मी कृष्ण भगवान हमारे लिए अलग पैदा होते हैं, इन लोगों के लिए अलग पैदा होते हैं. इट हैपन्स, मतलब पूरी दुनिया जन्माष्टमी मना रही होती है, हमारी कृष्ण जन्माष्टमी अलग से आ रही होती है. माई डॉटर्स आस्क मी कि मैम मम्मी हमारे लिए भगवान पेट के अंदर जाके दोबारा से वापस आते हैं. तो वी हैव सर्टेन कल्चर, सर्टेन बिलीव्स, जैसे हमारे अपना कि कैसे उस चीज को हमने फॉलो करना है. एंड देन एजुकेशनल, उस कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन भी. सो व्हाट विल हैपन अगर ऐसा नहीं होगा तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग 22 main languages, then number of religion, Hindu, Muslim, Sikh, Christianity, then आपके you have this you have also the Buddhism, Jainism. हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने रिलीजन है, कितने लैंग्वेजेस हैं. और इफ यू सी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आज इनफैक्ट झारखंड का दिवस है, टुडे इज झारखंड दिवस, आज के दिन झारखंड फॉर्म हुआ था. झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं दे वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस, बट कल्चर. मतलब कल्चर हर चीज का होता है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का. तो you might wonder why were the constitution makers were so particular in providing return guarantees. The return guarantees इसलिए किया गया था ताकि कोई और उसे चेंज ना कर सके. So it is the language, culture and religion of minorities that need special protection, or else they may be neglected or undermined. Undermined मतलब उनको नीचा दिखाया जा सकता है under the impact of language, religion and culture of majority. That is why Constitution specifies the cultural and educational rights of minorities. अभी मैंने ऊपर minorities का आपको बताया था that there are special schools जो है establish किए जाते हैं.
स्पेशल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अशोका यूनिवर्सिटी है, सेंट स्टीफन्स हमारे यहाँ पर जो है, देन आपका जो अंडर डीयू आपका मिरांडा जो है, मतलब देर आर सम स्पेशल कॉलेजेस विच आर प्रोमोटिंग ओनली दोस। ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं जा सकते, बट दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर देयर प्रमोशन। जीसस एंड मैरी कॉलेज, very famous. Jesus and Mary College is very famous college of South Delhi, Delhi University. But उनके यहाँ पर जो है, जो Christians होते हैं, they get the preference. Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. हमारे यहाँ देखिए tribals हैं. आज we are celebrating the tribal day and झारखंड के जो मेन हीरो थे बिरसा मुंडा, उनका आज मतलब कि जन्मदिन भी है, आज ही झारखंड हुआ था। जो हमारी अभी प्रेसिडेंट है, शी इज बिलोंगिंग टू ट्राइबल, तो दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर एंड दीज पीपल हैव द राइट टू कंजर्व इट। उनको जैसा चाहिए वो उसे कंजर्व कर सकते हैं, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। अभी रिसेंटली समवन हैड उनका मजाक उड़ाया, उनकी शक्ल का, उनके कलर का, दैट इज रॉन्ग। Admission to any educational institutions maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. Here minority does not mean religious minority. जैसे मैंने आपको बोला, minority is not religious. यहाँ पर language भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु इज मेजोरिटी इन आंध्रा बट माइनॉरिटी इन कर्नाटका। सिख मेजोरिटी इन पंजाब बट दे आर माइनॉरिटी इन अदर स्टेट्स। इसीलिए एंड देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स, मेनी मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे हमारे को बहुत सारी जगह दी है जिससे कि ये जो लोग हैं, जिनको हम लोग माइनॉरिटीज बोल सकते हैं किसी भी वजह से, because of their culture, because of their caste, because of their tribe, because of their language, they can establish themselves. अब गुतन बे का हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। ग्वांतानामो बे में क्या हुआ था? The people who were living there did not have any rights. अगर मान लो उन लोगों ने भी अपना एक छोटा सा माइनॉरिटी का ग्रुप बनाकर एक अपने लिए, if they had the rights, they could have raised their voice, लेकिन नहीं था। अब अगर हम इनके साथ में कुछ भी गलत करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। हमारे मतलब दिल्ली के अंदर, दिल्ली इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। दिल्ली डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टेट। दिल्ली के अंदर आपको ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, एंड यहाँ पर गुजरात से वहां अरुणाचल तक, यू विल फाइंड ऑल द। बट इफ यू सी द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, अगर आप साउथ दिल्ली चले जाओगे तो यू विल फाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आपको जो है पंजाब, मतलब उस के जो वहाँ के जो लोग हैं आपको वहाँ ज्यादा मिलते। इफ यू कम टू ईस्ट दिल्ली यू विल फाइंड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इफ यू गो टू वेस्ट दिल्ली यू विल अगेन फाइंड पंजाब, पंजाबीज आपको मिल जाएंगे वहां पर आपको। इफ यू गो टू नॉर्थ दिल्ली यू विल फाइंड अदर। तो you have a mixture of people from all the states, but जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, दैट इज आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे कम है। सो दे फॉर्म माइनॉरिटीज इन दिल्ली। एंड ऐसा पीछे हुआ था कि इन लोगों के साथ काफी हरेसमेंट हुआ था, इन लोगों का मजाक उड़ाना, कॉलिंग देम बाय नेम्स। Then the government released, एक उन्होंने नोटिस दिया that no one according to the rights of cultural and education you are not supposed to, आप उनको जो हो हैरेस नहीं कर सकते। ये जो राइट्स होते हैं ये इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें उनके लिए आवाज उठाना भी पड़ता है और उसके लिए हमें उन राइट्स के बारे में पता, मतलब पूरा पता होना भी जरूरी है।
नाउ दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अब तो ये तो हमने पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट्स, एक्सप्लॉइटेशन, हमने ये 5 राइट्स पढ़े। और अभी मैंने आपको क्या बोला, राइट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें उन राइट्स को पहले वी मस्ट बी अवेयर। जब हम खुद अवेयर नहीं होंगे तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर राइट्स। हमारे यहाँ पर मतलब एज अ पार्ट ऑफ राइट्स मैं आपको बता रही हूँ। देयर वी हैव द कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर राइट्स में क्या होता है, मतलब आप सामान खरीदते हो, ठीक है ना, आपने कुछ भी खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा है, तो यू ऑल हैव द कंज्यूमर राइट की जो वो राइट है, मतलब आपका जो सामान है इट शुड वर्क। एंड हो सकता है कि आपने कोई खाने की चीज मंगवाई हो जोमेटो से, वो दैट इज नॉट गुड, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, टेस्ट ठीक नहीं था। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यार ये अच्छा नहीं था, छोड़ो, वहीं पर हम अपने राइट्स को खो देते। इन द रियल सेंस वी हैव द कंज्यूमर राइट्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन राइट्स को समझना चाहिए एंड वी शुड यूज इट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, यहाँ पर भी आपका जो है वॉट एवर वी हैव द राइट्स, इन राइट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। भाई उसको कौन पूरा करेगा। The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable, क्योंकि उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई गवर्नमेंट, कोई भी इस राइट को जो है वॉयलेट नहीं कर सकता। We have a right to seek the enforcement of the above mentioned rights, which is called as right to constitutional remedies. इसको बहुत बहुत अच्छे से याद रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि जो बाकी 5 राइट्स है ना, उनको उनमें से कोई एक राइट भी किसी इंसान का वॉयलेट होता है तो हम इस राइट के अंडर वी कैन आस्क द गवर्नमेंट, कोर्ट और द पीपल टू फॉलो द राइट makes other rights effective. It is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, private bodies, or by government. When any of our rights are violated, we seek remedy through courts. If it is a fundamental right, then we can directly approach the Supreme Court or High Court of a state. That is why it is called as right to constitutional remedies, the heart and soul of our constitution. ये आता है पेपर में। Fundamental rights are guaranteed against the actions of legislature, जो लॉ बनाते हैं, executive जो उसको implement करते हैं, and other authorities. There can be no law or action that violates fundamental rights. जो भी आपका लॉ बनता है ना, गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बनाती है या किसी लॉ में कोई चेंज लाती है, तो उनको ये देखना पड़ता है कि ये जो 5 राइट्स हैं हमारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनमें से किसी राइट को हम वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के किसी स्टेप से इन राइट्स का इन मतलब ऐसा तो नहीं है कि कॉमन पीपल के राइट्स जो है वो वॉयलेट हो गए हैं। We can challenge, sorry, if any act of the legislature or executive takes away or limits the fundamental rights, it will be invalid. We can challenge such laws of the center and state government, the policies and action of government or nationalized bank or electricity board. Courts also enforce the fundamental rights against private individuals and bodies. हमारे इंडिया के अंदर, बिकॉज अभी अभी मैं न्यूज पढ़ रही थी कि India will be
the largest, sorry, having the largest population in 2023, surpassing China. मतलब चाइना अभी नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, बट 2023 में हम नंबर 1 होंगे, वो नंबर 2 होगा. कहीं तो हम आगे आए, है ना. और हमें तो पॉपुलेशन बढ़ाने का शौक है, हमारे तो काम ही यही है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और बस. किसी किसी के घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं. वी डोंट हैव. तो आज से 20-25 साल पहले, मतलब 25 years बिफोर, द गवर्नमेंट जो है, इट हैड इन यूपी, इन उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक लॉ बनाया कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. राइट नाउ, ये वैसे तो बहुत अच्छा स्टेप था. एंड देन देयर वाज अ लॉ इन हरियाणा that those who are minimum 10th pass should contest elections. देखा जाए तो दोनों ही बहुत बढ़िया है. उससे एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स में आएंगे, एंड जो हमारा पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आएगा. राइट ये तो अच्छी बात है. लेकिन हुआ क्या, these two decisions violated the fundamental rights. आपका फंडामेंटल राइट्स कहता है राइट टू इक्वालिटी. अब आपके ज्यादा बच्चे हैं तो आपको, मतलब कि इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जो है कंटेस्ट करने से मना कर दिया जाएगा, या फिर आप कम पढ़े लिखे हो तो. क्योंकि राइट टू इक्वालिटी मींस रिच, पुअर, लिटरेट, इलिटरेट, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. और बाद में गवर्नमेंट को उस दोनों डिसीजंस को वापस लेना. तो ऐसे अगर कोई भी लॉ बन जाता है which may be beneficial but which may be violating the fundamental law, then we can knock the doors of the court and we can ask for justice. The Supreme Court and High Courts have the power to issue directions, orders or writs. ये जो पिंक कलर में writs लिखा है, ये आपके 8th स्टैंडर्ड में भी था. writs होते हैं रिटर्न आपका नोटिस टू द पीपल. मतलब दे कैन इशू द रिट. अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट या किसी ने भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, तो दे कैन गिव द नोटिस. अभी ये हम बाद में पढ़ेंगे नेशनल राइट्स का. एंड दे कैन आल्सो अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स. We have already seen in chapter 5 that judiciary in our country is independent. We also notice judiciary is very powerful and it can do whatever it needs to protect the rights of citizen. तो हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है, it has the power to interpret the constitution. In any case, any violation of fundamental rights, the aggrieved can go to a court for remedy. But now any person can go to court against violation if it is of social or public interest. It is called PIL. अगर गवर्नमेंट का कोई भी जो रूल है, अगर वो सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, उसकी वजह से सिर्फ आपके लिए नुकसान है, तो यू कैन गो फॉर द कोर्ट. बट अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट के किसी फैसले से बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी हो रही है, then you can go to the lawyer and on your behalf, on the behalf of all the people, the lawyer can file a case in the court, जिसको हम कहते हैं public interest litigation. ये बहुत 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 important और बहुत अच्छा है. It is called PIL. Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for protection of public interest against a particular law or action of government. I'll tell you how. One can write to the judges even on the postcard. The court will take up the matter if the judges find it in public interest. अगर वो लोगों के हित में है, अगर वो उस एक्शन से लोगों को परेशानी हो रही है, तो देन द जजेस एक्ट इमीडिएटली. पहले तो हमारे इंडिया के अंदर ये होता था कि जो आपके वीडियोस अगर होते थे,
वो they were not taken into consideration, but now in certain cases even they are also allowed. You all know about the famous odd and even, जो कि केजरीवाल जी का एक फेमस लोगो है. जब भी पोल्यूशन होता है तो वो कहते हैं ऑड एंड इवन कर. नाउ what happened, I think it was in 2019 or it was that period or after, during the period of COVID. अब उन्होंने तो डाल दिया odd and even. According to odd and even, on the odd days you should take the vehicle with odd number, and on the even days you should take the even number. Now the PIL जो उनके उनके ऊपर लगा against the government, वो ये था. फर्स्ट, किसी के पास दो दो गाड़ियां तो होंगी नहीं, ठीक है, कि वो ऑड, और अगर दो गाड़ियां होंगी भी तो जरूरी नहीं है ना कि एक ऑड और एक इवन होगा, ठीक है. दूसरा, घर के मतलब की जो सड़क है वह उसमें आप जो हो स्कूटर्स को अलाउ कर रहे हो. पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन विल बी स्प्रेड बाय स्कूटर आल्सो, बाय मतलब एनी व्हीकल व्हिच इज हैविंग द फ्यूल वो करेगा. देन व्हाई. थर्ड, जो आपके कैब्स हैं, ओला कैब्स वगैरह, दे आर आल्सो रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल. फिर आप उनको क्यों अलाउ कर रहे हो? उस साल के बाद केजरीवाल डिड नॉट टेक द ऑप्शन ऑफ ऑड एंड इवन. ठीक है, ऑड एंड इवन इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, लेकिन उस मतलब दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नॉट एवरीवन इज हैविंग द एक्सेस टू बस स्टॉप. अब आपके घर के पास बस स्टॉप नहीं, आप क्या करोगे? आपका ऑफिस इतना दूर है कि आपको बस से जाने में दिक्कत हो रही है, यू आर हैविंग योर ओन व्हीकल. देन तो यू कैन नॉट मेक एनी लॉ विच कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू द पीपल. सबके लिए गाड़ी जो है वो लग्जरी नहीं है. सम पीपल हैव व्हीकल फॉर देयर ओन कंफर्ट, नॉट लग्जरी. उनकी जरूरत हो सकती है. एंड गवर्नमेंट के नॉट फोर्स यू टू यूज दिस. अब हमें क्या पता कौन सा मतलब अब हमारे पास अगर ऑड व्हीकल है तो इवन वाले डेज हम ऑफिस कैसे जाएंगे भाई? तो दिस इज हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो आपका हेल्प करता है. अब हमने जो है ग्वांतनामो बे के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्रिमिनल्स मतलब जिन लोगों को वहां पर क्रिमिनल्स कहकर बंद कर दिया गया, दे वर टॉर्चर. नाउ व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स यानी कि आपको, यू आर हैविंग द राइट टू लिव, you are having the right to eat, you are having the right to sleep, and you are having the right to work. आप ह्यूमन हो, आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो तो आपका आएगा. और अगर आपको कोई टॉर्चर करता है बिना मतलब के, देयर आर इंसिडेंट्स जब ऐसा हुआ है, तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना वो एंटर करता है. अभी आजकल अगर आप में से कोई बच्चा न्यूज देखता हो तो एक फेमस केस चल रहा है सिद्धार्थ और श्रद्धा. ये मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैं भी वो न्यूज के अंदर वो पॉपअप करता रहता है. तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो सिद्धार्थ था उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी जो भी थी उसको मार डाला. मार डालने के बाद जोमेटो से खाना वाना मंगवाया और अपनी जो वो लड़की थी उसके टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया. नाउ Human Rights Commission has entered into this and they have said that this is a violation of human rights. अब वो लड़की तो वापस नहीं आ सकती है, बट तो ऐसे जब केसेस हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली जो है ऐसा नहीं, ह्यूमन राइट्स जाएगा उसको पकड़ेगा ठक 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 मारेगा. नो, जब उनके सामने ऐसे केसेस आते हैं तो देन दे टेक द इनिशिएटिव, वो लोग इन केसेस को कोर्ट तक पहुंचाते हैं. और जो ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये रिटायर्ड जजेस ही होते हैं.
तो जब उनको पता लगता है कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, तो दे डोंट पनिश द गिल्टी बट दे टेक दीज केसेस टू द कोर्ट. Do you notice reference to national human rights in the news collage? मैंने जैसे आज बताया, जैसे गुजरात राइट्स में हुआ था, कई कई जगहों पे होता है. Someone had to intervene on behalf of victims. This is where national human rights stepped in. It was established in 1993. ये पेपर के क्वेश्चंस हैं. Like judiciary, the commission is independent. It is appointed by the president. It includes retired judges, officers, and eminent citizens. It does not have the burden of deciding court cases, but ये help करता है victims को. For example, the NHRC cannot by itself punish the guilty. वो नहीं कर सकता, वो तो कोर्ट करेगा. लेकिन it makes a inquiry. It also inquires in any case of abatement of such violation, negligence. मतलब वो कोशिश करता है कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत हुआ है. Then the commission presents its findings and recommendation to the government or in the court. It has a wide ranging power to carry out of its inquiry. It's just like CBI. Like any government official, it can summon the witness, question the government official, demand any paper. मतलब वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता. Any citizen of India can write a letter to this address, ये जो आपको दिया हुआ है, National Human Rights Commission, फरीदकोट, कोपरनिकस. और यहाँ पर अप्रोच करने के लिए there is no fees or formal procedure. अगर आपको लगता है आपके घर के आसपास में ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, किसी के साथ ना इंसाफी की जा रही है, इनह्यूमन बिहेवियर है, then you can definitely. But these are not fundamental rights. These are also certain rights. As I told you, there are fundamental rights, there are constitutional rights. मतलब constitutional rights आपके होते हैं कुछ special rights. Now, अब तक तो हमने पढ़ा we have certain rights, we have certain. अब यहाँ तो आपके जो है ड्यूटीज नहीं दी गई है, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि राइट्स कभी भी जो है बच्चे राइट्स नहीं रहते हैं जब तक आप में उसमें ड्यूटी ना हो. अगर आपको सिर्फ राइट्स दिए जाएंगे और आपकी ड्यूटी नहीं होगी ना, अच्छा ठीक है आपको राइट है बेटा, आपको जो खाना खा लो. अब आप क्या करोगे, किचन में जाओगे, इधर उधर बर्तन फैलाओगे और आ जाओगे. अगर आपको राइट के साथ ये ड्यूटी भी दी जाएगी कि नहीं आप खाना तो बना सकते हो, बट यू ऑल्सो नीड टू क्लीन द किचन, देन राइट्स आर एनफोर्स्ड इन द राइट डायरेक्शन. और हमारे यहाँ पर वी हैव 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो. हमारे यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे. We need to protect our state, we need to protect our forests, we should salute our national flag, we should not indulge in violence. ऐसे करके हमारे 10 duties भी हैं. Right? Now, while fundamental rights are the source of all rights, our constitution and law offers a wider range of rights. जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हमारे basic rights हैं. As an Indian, everyone has these rights. And there are certain special rights also. Sometimes it leads to expansion in the legal rights. For example, from time to time, the courts gave judgment to expand the scope of rights. जैसे freedom of press, right to information, right to education. आप कहीं पर भी, wherever you are, even if you are in a school also, आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है. यू कैन आस्क दिस पीपल, भाई अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हमारा पैसा कहाँ यूज होता है. नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स. सर्व शिक्षा अभियान. The governments are responsible for providing free and compulsory education to all children up to 14 years. And साथ में उनको मिड डे मील्स भी देना पड़ता है. And this is for the government and MCD schools. Even in the public schools, there is
5% EWS quota, economically weaker section. पार्लियामेंट हैज इनैक्ट, और ये क्यों दिया है 5% कोटा, जिससे कि गरीब बच्चा भी जो है पढ़ पाए. Parliament has enacted a law giving the right to information. This act was made under fundamental right of freedom of thought and expression. We have right to seek information from government offices. अभी recently क्या हुआ था, someone उसने पूछा कि मोदी जी जो हैं हर एक उसमें अलग अलग कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़ों की जो कीमत है वो भी माशाल्लाह काफी महंगी है, तो फ्रॉम वेयर डज ही गेट ऑल दीज मनी. तो किसी ने PIL डाला था, राइट टू इंफॉर्मेशन डाला था. वी कैन यूज इट. RTI इज यूज वेयर यू फील आपका जो पैसा है, आपके जो टैक्सेस हैं, दे आर नॉट यूज्ड, या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो अंडर RTI आप जाकर पूछ सकते हो कि भाई ये नरेगा कहाँ पर आपने किया है, मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला है, तो मुझे बताओ. ऑल्सो recently the Supreme Court has expanded the meaning of right to life include right to food. पहले क्या होता था, begging was an offense. Now under right to life, begging is permissible. Fundamental rights as enumerated in the Constitution. इसके अलावा we have many other rights which are not fundamental, जैसे right to property. It is not a fundamental right, it is a constitutional right. मैंने आपको बताया that we have certain rights जो कि constitutional है, तो वो जिस situation में होता है उसी situation में उसको हम use करते हैं. Right to vote in election is an important constitutional right. Sometimes the expansion takes place in what is called human rights. These are universal moral claims that may or may not be recognized by law. In that sense, these claims are not rights by definition. With the expansion of democracy all over the world, there is greater pressure of government to accept these claims. कई लोगों ने जो है नई नई चीजों का क्लेम किया है. Some international covenants. Now, what is the meaning of covenants? It is written here. It is a promise made by individual, group or countries to uphold a rule or principle. मतलब कोई भी promise कई लोगों ने promise किया है for expansion of the rights. Thus, scope of right has been expanding. New rights आ रहे हैं. हमारे यहाँ पर नो डाउट अभी राइट्स ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में देखोगे तो उनके नए राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी. जैसे हमारे यहाँ तो मूवी में दिखाते हैं ना, फोन टैप कर दिया, नो बडी कैन. इवन व्हाट्सएप हमारे यहाँ पर स्टिल इट इज अनसेफ. इफ यू गो टू अदर कंट्रीज इट इज क्वाइट सेफ. यहाँ पर तो चैट को खोल सकते हो, मतलब आप नहीं, थ्रू द हैकर्स. You cannot tap the phones of people. Abhi, you remember, abhi last week, there was one very serious case, right to privacy of Virat Kohli. उसके जो होटल रूम्स थे उसके वीडियोस वायरल हुई थी. That's right to privacy. So this is not there in some countries. अगर other ये rights होंगी ना, so that person will be punished. Right to an environment that is harmful to their health or well-being. अगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया ना, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबके चीफ मिनिस्टर सीधा जेल में ही पाए जाएंगे, because the worst polluted cities में we are there. Right to have access to adequate housing. Yes, in our country the efforts are being made. सबका साथ सबका विकास, देन आपका आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना. Right to have access to healthcare services, sufficient food and water. No one may be refused emergency medical treatment. This is there in India also. पहले क्या होता था,
long back, I'm not talking अभी, बहुत पहले क्या होता था, if there is an accident or any violence, किसी को चोट वोट लग गई, and if you take that person to the hospital, the doctors will not treat. वो कहेंगे पहले इसका केस लिखवा के लाओ आप, उसके बाद मतलब कि पुलिस की जो है कार्यवाही होगी, उसके बाद हम लोग जो है इसको करेंगे. बट नाउ nobody can deny it. अगर आप लोग मूवी हॉल्स में मूवी देखते हो तो एक आध बार इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, नो गवर्नमेंट बॉडी, नो हॉस्पिटल, नो डॉक्टर कैन डिनाई एनी ट्रीटमेंट. वो ट्रीटमेंट अपना पूरा स्टार्ट करेगा, पुलिस को अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. दूसरा, पहले क्या होता था, आपका जो है मतलब आपने मदद की, ठीक है, आपने मदद की, आते जाते आपने मदद कर दिया, और पुलिस आपको परेशान करेगी. बट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस राइट, you are not supposed to trouble the person who has just helped. So there are certain rights. It happened with me long back, not now, 6 7 years back था कि once I was coming back from my institute, तो गाड़ी में थे, तो I was going back to my mom's place in Rampuri. तो दिलशाद गार्डन से रामपुरी जाने की जो नीचे वो है अंडर पास है, वहां पर किसी लड़की के साथ किसी ने बदतमीजी की. नाउ माय हस्बैंड सेड कि तुम जाओ नीचे एंड हेल्प कर दो. व्हेन आई वेंट, वहां पर भीड़ तो लगी हुई थी, लेकिन कोई भी फोन करके पुलिस को नहीं बुला रहा था. कोई कहता मेरा जो फोन है वो डेड है, तो दूसरा कह रहा था मैं नहीं दूंगा. देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, ही सेड कि कुछ नहीं रमा, वो पुलिस उनको परेशान करेगी ना, तो मेरे फोन से कर दो. I called up the police. They called me up 3 times to inquire what actually happened. मैंने बता दिया, फिर उन्होंने कहा ठीक है. So now you have the right of privacy, you have the right of emergency medical treatment. कोई भी आपको मना नहीं कर सकता. If anyone is lying on the, कई बार क्या होता है, सामने इंसान पड़ा हुआ है, दूसरा कहता है भाई मैं नहीं लेके जा रहा इसको हॉस्पिटल, भाई मर रहा तो मरने दो, पुलिस मुझे पकड़ लेगी. बट या फिर डॉक्टर्स मना कर देंगे. But now these things are not allowed. We also have expanded, but still हमारे यहाँ पर there are certain rights, like right to health should be there, more health right to minimum livelihood, right to privacy भी होना चाहिए. हमारे यहाँ तो पता नहीं privacy के नाम पर all our chats, phones are hacked, कई चीजें होती हैं, सेलिब्रिटीज की कितनी चीजें होती हैं वो हैक हो जाती हैं. दिस इज देयर. ये जो लेफ्ट में बना हुआ है बेटा, दिस इज द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ये हमारा पार्ट नहीं है, ये अभी इंटरनेशनल भी नहीं है, बट मेनी पीपल आर आस्किंग फॉर दिस ऑन द इंटरनेशनल ग्राउंड. राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग. भाई गवर्नमेंट को कुछ ऐसे बनाने चाहिए कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ कमाए. Right to safe and healthy working conditions, fair wages that can provide decent standards of living for workers and their families. हम लोगों ने पालमपुर में पढ़ा था that government of India has fixed the wages for 180 rupees, लेकिन वहाँ लोगों को 40 rupees में भी काम करते हैं, they don't get. So there should be a proper system. Right to adequate standard of living including food, clothing and housing, social security and insurance. In many countries insurance is subject matter of government. Canada में, US में आप एक बार you pay, but कुछ भी होता है तो then the government is responsible. Right to health, medical care during illness, special curing during childbirth or prevention of epidemics. एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, हमारे यहाँ ऑलरेडी है सर्व शिक्षा अभियान. इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ये अभी हमारे यहाँ पर नहीं है. मीन्स है, लेकिन when it comes to the money factor, yes, we have the colleges for all kinds of courses, we have number of, but क्या होता है कि due to the system, due to corruption,
अभी हम ये नहीं बोल सकते कि टॉप लेवल पर everyone is getting the access. With few people who belong to the rich category or who belong to EWS category or who have the मतलब जिनका कोई मामा चाचा जो है पॉलिटिक्स में है, दे गेट दिस बेनिफिट, बट बाकी लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. वी नीड टू एंश्योर दैट ऑल्सो. सो इन दिस मैनर, in this chapter we have learned what are rights. Rights मतलब anything, any benefit जो आप एक घर में रहते हो, आप एक स्कूल में हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपको सर्टेन राइट्स होते हैं. देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अस विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स. हमने डेमोक्रेटिक राइट्स को पढ़े, right to equality, freedom of speech, freedom of religion, against exploitation, cultural and education. And if these rights are violated, then we have the courts and we can use the another right, that is right to seek the remedy. आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आप उसके अंडर यू कैन आस्क. प्लस यू कैन गो टू द कोर्ट. अगर आपको लगता है गवर्नमेंट का कोई एक्शन, गवर्नमेंट का कोई जो रूल है वो वॉयलेट कर रहा है, तो आपके पास PIL है. द गवर्नमेंट, अगर कोर्ट को लगता है दैट द गवर्नमेंट हैज वॉयलेटेड या किसी ने भी वॉयलेट किया है, तो दे कैन यूज द रिट, WRIT. प्लस ओवर द पीरियड कई बार प्रिजनर्स जो जेल में होते हैं, गंगा जल जो मूवी है अजय देवगन की, अगर आप उस मूवी को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो जेल में लोग रहते थे, जो प्रिजनर्स होते थे, दे वर एक्सप्लॉइटेड. एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है इंटरवेन करके उनको जो है दे वर गिवन द जस्टिस. नॉट ऑल द पीपल हु आर इन द जेल आर क्रिमिनल्स. तो while you are in the while people have been put in the jail, तो आप उनको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते. You cannot touch them without reason, you cannot beat them without reason. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इन इश्यूज को देखता है. यू कैन डायरेक्टली राइट, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. ऑटोनॉमस मतलब उसे गवर्नमेंट ने फॉर्म कर रखा है जहां सिटीजन्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर द ह्यूमन राइट्स. जहां मारा पीटी, उनके साथ कोई किसी भी तरीका का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, they will not give any punishment, but they would take up the case, they would go for the investigations. और अगर उनको प्रूफ मिलता तो वो कोर्ट में रख मतलब की करके they will ask the court to intervene. So this is, then we studied that there are more scopes of expansion. कुछ हमारे rights हैं जो constitutional है, जैसे right to property. Then in some countries like South Africa, they have other rights also. उनमें से कुछ राइट्स तो हमारे यहाँ पर भी है, जैसे एडिक्वेट हाउसिंग का है हमारे यहाँ पर, एजुकेशन का है हमारे यहाँ पर. तो दिस वे आने वाले टाइम में these kinds of rights will increase. And as a duty, as a student of political science, you must know कि जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप कहते हैं, क्योंकि हमारे पेपर का, हमारी बुक का नाम ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, तो जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, तो उसके अंदर एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट एंड सर्टेन डेमोक्रेटिक राइट्स जो आज हमने पढ़ा. दिस इज द चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स.